Hello students, myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. Today we will discuss about a very important topic that is known as stereochemistry. This is very important part of organic chemistry. Now what is stereochemistry? It is the branch of chemistry which concern with the three-dimensional arrangement of atoms and molecules and the effect of this on chemical reaction. तो आपका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स की 3D अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करती है। जैसे आपका वो एटम्स लीनियर भी हो सकते हैं, आपका ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकते हैं, वो आपका बेंट या एंगुलर भी हो सकते हैं, वो आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, वो आपका ट्राइगोनल पिरामिडल भी हो सकते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उनका 3D अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। तो इसको स्टडी करना आपका क्या कहलाता है? आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है। नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होता है आपका? जब दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं आपके, उनकी एलिमेंटल कंपोजिशन सेम है, मींस आपका एटम्स हैविंग सेम molecular formula. Those compounds having same molecular formula but different structures or arrangement of atoms is called isomerism. तो ऐसे compounds के पेयर जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जिनका आपका क्या है, आपका स्ट्रक्चर्स या फिर आपका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो अलग है लेकिन मोलिकुलर कंपोजिशन सेम है, उन कंपाउंड्स को आप बोलते हैं कि आपका इनमें आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। जैसे आपका दो एग्जांपल्स हैं, आपका एक आपका ये इथेनॉल है जिसमें आपका CH3CH2OH, और एक आपका ईथर है, आपका डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो भी अलग अलग है। एक आपका इथेनॉल है, अल्कोहल है, एक आपका ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। तो ऐसे पेयर्स जिनका सेम डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर या एलिमेंटल कंपोजिशन इज नोन एज isomerism. Now types of isomerism. Mainly isomers are of two types: structural isomers and stereoisomers. Structural isomers are those isomers which have same elemental composition but differ in their structures. Those are called structural isomerisms. And stereoisomers are those isomers, compounds having same elemental composition but different arrangement of atoms in space is called as stereoisomers. Structural isomers are of different types like chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, आपका metamerism, tautomerism and ring chain isomerism. These are examples of structural isomerism. And now stereoisomers are of two types: geometrical isomers and optical isomers. Geometrical isomers are those isomers which have different spatial arrangement about a double bond. Means compounds having different arrangement of atoms in space around a double bond is called geometrical isomerism. And optical isomers are those isomers which have different arrangement of atoms in 3D space which creates mirror image of each other are called optical isomers. We will discuss this in next slides in detail. First is structural or constitutional isomerism. Those structures, those compounds which are differ from each other in the way their atoms are connected, means in their structure. Those isomers which have same elemental composition but different structure are known as structural or constitutional isomerism. Generally these are of mainly 6 types we consider structural isomerism. First, chain, skeleton or nuclear isomerism. Second, we will discuss in details about them. First is chain isomerism, second position isomerism, third functional isomerism, fourth metamerism, fifth tautomerism, and last is ring chain isomerism. Now what is chain, skeleton or nuclear isomerism? Those isomers which have same, those compounds which have same molecular formula but different arrangement of carbon chain within the molecule, means these two compounds are differ in their structure by chain length. Like
we have same molecular formula C4H10. Two compounds N-butane and 2-methylpropane or commonly known as isobutane. These both have same molecular formula, that is C4H10, but these compounds have two different structures. That is, they are examples of structural isomerism. N-butane and 2-methylpropane are two structural isomers. But we know structural isomers are of 6 types. Now we will have to find which type of structural isomers they are. Now since in both these compounds there is only one difference, that is of chain length. In N-butane there is a chain of straight chain of 4 carbon atoms, but in 2-methylpropane or isobutane is a chain of 3 carbons with one substituent. That is, these two compounds have differ only in chain length. Hence, these compounds are example of chain isomerism. Similarly, for pentane, pentane have molecular formula C5H12. These two compounds, neopentane, three compounds, sorry, neopentane. This is our N-pentane. N term is used for common name having straight chain. Isoterm is used for like isopentane, in which a substituent, methyl substituent is present on second position. And neoterm is used for when two methyl groups or two alkyl groups are present on second position. Now these three examples, N-pentane, isopentane and neopentane, both all of them have same molecular formula C5H12, but they have different structures. Different structures, like N-pentane have a linear chain of 5 carbon atoms. In isopentane, a chain of 4 carbon atoms and one carbon is as a substituent. In neopentane, a chain of 3 carbons and 2 carbons as a substituent. Means these three compounds only differ in their chain length. Hence, this is also as an example of chain isomerism. So, we are clear about this. Chain length or chain skeleton or nuclear isomerism are those isomers in which compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon chain within the molecule. Now next is position isomerism. Position isomerism is known as compounds having same carbon skeleton, means same chain length, same carbon skeleton, but differ in their position of attachment of atoms or groups in multiple bonds. मीन्स क्या होगा, आपका जो आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका जो बेसिक स्केलेटन है वो क्या होगा, कार्बन का स्केलेटन वो क्या होगा, सेम होगा. ऐसे आप आइसोमर्स को आप क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स. जैसे आपका ये दो एग्जांपल्स हैं, आपका ये दो एग्जांपल्स की बात करें. फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्रोपेन 1 ओल और सेकंड एग्जांपल है आपका प्रोपेन 2 ओल. इनमें हम देखें अगर तो देखो दोनों एग्जांपल्स में आपका 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन है. सिर्फ फर्क क्या है आपका, यहाँ पर जो OH ग्रुप है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका फर्स्ट कार्बन पे है, और जो सेकंड एग्जांपल है उसमें आपका जो OH ग्रुप है वो आपका सेकंड कार्बन पे है. मींस नॉर्मल बेसिक कार्बन स्केलेटन सेम है, सिर्फ जो अटैच्ड एटम या ग्रुप है जो अटैच्ड है स्केलेटन के साथ उसकी पोजीशन अलग अलग है. आपका एक कंपाउंड में वो फर्स्ट पोजीशन पे है, एक में वो सेकंड पोजीशन पे है. तो इस टाइप के आइसोमर्स को आप बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स, जिनमें जो आपका अटैच्ड एटम या ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग है, स्केलेटन सारा सेम है बाकी. जैसे आपका 3 एग्जांपल्स हैं आपके ये डाइक्लोरोबेंजीन के. आपका फर्स्ट आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों में सेम है, सिर्फ पोजीशन क्या है आपका, क्लोरीन्स की पोजीशन आपका डिफर है. इसमें दोनों ऑर्थो पे हैं, इसमें मेटा पे हैं और इसमें पैरा पे हैं. तो बाकी कार्बन स्केलेटन सेम हो, सिर्फ जो एटम या ग्रुप अटैच है जो उस कार्बन स्केलेटन के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है सिर्फ. तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप बोलते हैं
पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, जब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है दो कंपाउंड्स का, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उनका वो अलग अलग है, उसको बोलेंगे आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे आपका इथेनॉल है आपका, और आपका डाइमिथाइल ईथर है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स का C2H6 और O है। आप चेक कर सकते हैं, C2H6O है मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन आपका इथेनॉल में आपका यहाँ पे इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका जहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया आपका, दो कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे एक और एग्जांपल है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का भी और आपका इस कंपाउंड का भी, C2H4O2, C2H4O2 है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आपका ईथर है। तो आपका इसमें भी ये दोनों भी किसके एग्जांपल हो गया, आपका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो आपका ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, कोरस्पोंडिंग सिमिलर आपके कार्बन नंबर्स के आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स है, जैसे आपका 3 कार्बन मेंबर वाला आपका क्या होता है, प्रोपेनोन, ये आपको कॉमन नेम एसीटोन भी बोल देते हैं, और आपका प्रोपेनल। तो ये दोनों भी आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है आपका, जिसमें जो बाई फंक्शनल ग्रुप है वो आपका जो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं बाई फंक्शनल ग्रुप के एक साइड, जैसे आपका ये कंपाउंड है आपका कीटोन है आपका, इसमें देखो आपका ये जो कीटोन ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप के एक साइड 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। अब लेकिन इसमें जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें एक में कीटोन ग्रुप के एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है। तो ये दोनों आपके कंपाउंड्स क्या है, आपके मेटामर्स हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है आपका, मेटामर्स होते हैं वो आइसोमर्स जिसमें आपका जो बाई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये आपके अलग अलग एग्जांपल ग्रुप्स दिखा रखे हैं, ऑक्सीजन जैसे आपका ईथर्स में, ठीक है, आपका अमाइड्स में, या फिर आपका कीटोन्स में, जो दोनों साइड कार्बन की चेन है, कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन हैं वो अलग अलग हो, जैसे पेंटेन 3 ओन में तो आपका कीटोन के दोनों साइड 2 कार्बन की चेन है, पेंटेन 2 ओन में एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन, ठीक है। या फिर आपका आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन है, इसमें एक साइड 1 कार्बन की चेन है, एक साइड ये आपका एक ब्रांच चेन है। तो जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप के आपका दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके मेटामर्स। जैसे ईथर्स में भी आप बात करें, ये आपका डाइथाइल ईथर है, और आपका ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है आपका, या मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है। तो ये आपके एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हैं, क्योंकि डाइथाइल ईथर में दोनों फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड 2 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन आपका मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में एक साइड 1 कार्बन है और एक साइड आपका 3 कार्बन है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए मेटामर के। नेक्स्ट इज टोटोमेरिज्म, ये हम कर भी चुके हैं लास्ट वीडियोज में। टोटोमेरिज्म आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आपका, ये आपका एग्जिस्ट करता है, इजीली एग्जिस्ट करता है आपका कीटो कंपाउंड्स में या इनोल कंपाउंड्स में। ये क्या होता है, एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। आपका जो इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म होती है आपकी इन प्लस ओल, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं इनोल फॉर्म। इन आपका डबल बॉन्ड के लिए, ओल आपका एल्कोहल के लिए। तो ये आपका इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं इक्विलिब्रियम में कीटो में, तो इसको बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसके बारे में हम क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका अब एग्जाम्पल, आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर भी है ये, अब आ गया आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा कि बताया भी था डेफिनेशन, आइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but differ in the manner their atoms or groups are attached in the space are called stereoisomers। means आपका क्या होता है, आपका जिन कंपाउंड्स का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट एटम्स या ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है स्पेस में अटैचमेंट की,
वो क्या है, अलग अलग है, तो उनको आप बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। दो टाइप के आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। First is conformational isomers. Conformational isomers are those isomers which can be interconverted. आप ध्यान देना डेफिनेशन पे, स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड रैपिडली एट रूम टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स। दो टाइप के आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो जो फर्स्ट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो आपके क्या होते हैं, जो आइसोमर्स एक दूसरे में रैपिडली इंटरकन्वर्ट हो सके। मींस एक कन्फर्मेशनल आइसोमर दूसरे कन्फर्मेशनल आइसोमर में रैपिडली आपका क्या होता है, इंटरकन्वर्ट हो सकता है रूम टेम्परेचर पे विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो उस टाइप के आइसोमर्स को आप क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाए रूम टेम्परेचर पे विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स। अब क्योंकि ये एक दूसरे में रैपिडली इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, एक आइसोमर स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर में रूम टेम्परेचर पे ही इंटरकन्वर्ट होता रहता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशंस पे इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेकेंड है आपका कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स। वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनको आप इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते, कब तक, जब तक कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जाए। मींस इनको भी इंटरकन्वर्ट नहीं किया जा सकता विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड अनलेस ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन आर कॉल्ड कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स। अब जो आपके कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स है वो भी आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर इनेंशियोमेरिज्म भी बोल देते हैं। सेकंड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब फर्स्ट आपका आ गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इनेंशियोमेरिज्म। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द स्टीरियो आइसोमर्स which are related to each other as an object and its non-superimposable mirror image are called optical isomers और इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एग्जांपल्स में इसको डिटेल में समझेंगे हम। अगर इफ टू आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, if two isomers are mirror image and they are non superimposable, we can't superimpose one on another, that are called non superimposable. If two compounds are non superimposable mirror image, two stereoisomers are non superimposable mirror image, then those are called optical or enantiomers. The optical isomers can rotate plane of polarized light to an equal degree but in opposite direction. If we have two optical isomers, they will both rotate plane of polarized light but in opposite direction, in equal degree but in opposite direction. If one will rotate light in right direction, one will rotate in left direction, other will rotate in left direction. This property of rotating plane of polarized light is known as optical activity. Optical activity is known as property of optical isomers of rotating light of polarized light is known as optical activity. Like these two examples like molecular formula is C3H6O3, but these two compounds have different structure. In one structure OH is on right side, in another structure OH is on left side. These two structures are mirror image of each other. As you can see from this diagram, these two structures are mirror image, but you can't superimpose one on another. Means these are non superimposable, like our hands. As our hands are non superimposable, similarly these two structures are non superimposable. Means you can't, if you will put
if you will put this structure above this structure, you will not get superimposable mirror image. These are non-superimposable mirror images, and these are hence these are called enantiomers. This compound rotates lights in left hand side, means anti-clockwise, and this compound rotate light in right hand side, means clockwise. These two compounds rotate light in different directions. Hence it is clear, if we have enantiomers or optical isomers, they will rotate light in with equal degree in opposite directions. Next is geometrical isomers. Geometrical isomers are stereoisomers. These are also stereoisomers which are differ in their spatial arrangement due to restricted rotation across a double bond. ये आपका क्या होता है, आपका स्टीरियोइसोमर्स होते हैं, अलग अलग आपका स्पेस में अरेंजमेंट होती है, वो रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती, और रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड से बाउंड होते हैं. जैसे आपका जो जनरली आप सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, जिनको आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब देखो ये दो एग्जांपल हैं सिस और ट्रांस. आपका क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है उस स्पेस में वो अलग है. देखो इस कार्बन पे भी आपका एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लगा हुआ है, इस कंपाउंड में भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है. यहाँ पे इस कंपाउंड में देख, इस कार्बन पे देखें, यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है. स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जो अरेंजमेंट है एटम्स की स्पेस में वो अलग अलग है. इसमें आपका क्या है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसमें आपका दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है. तो आपका सेम एटम सेम साइड होते हैं तो आपका सिस आइसोमर्स, और अगर आपका अपोजिट साइड होते हैं तो आपका ट्रांस आइसोमर. तो ये आपका एग्जांपल्स होते हैं, सिस और ट्रांस आपका एग्जांपल होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का. जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी है या जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू.